Hello students, welcome to the Nalanda Vidyalay's digital platform in which we will continue the learning process. I think you all are fit and healthy, and we will now start the new session of our standard 6 SS section civics, in which we will start chapter number 21 with the title Prejudice, Discrimination and Inequality. I will repeat, we will start a new session of the chapter number 21 of standard 6 SS, in which civics part with the title Prejudice, Discrimination and Inequality. Dear students, we have already completed chapter number 20, in which we have learned what is called diversity. Diversity in India, and then unity in diversity at last, that how we are from different regions speaking different languages, and we are united. And that was the chapter number 20. Now we will start chapter number 21. Before we go through the any kind of explanation, let me explain you what are these three words: prejudice, discrimination and inequality. I will speak the meanings in Hindi, so you can get the main idea of these words. Prejudice means पक्षपात, जिसे हम कहते हैं ना पक्षपात करना, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियन या किसी पर्टिकुलर रेस या किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में आपको फेवर होना और दूसरे के उसके अपोज में फेवर होना, that is called prejudice. पक्षपात. Discrimination, the meaning of discrimination in Hindi is भेदभाव. Discrimination means भेदभाव. And inequality, मतलब जो हम कह सकते समानता नहीं है, असमान. Inequality. So these three words are very important for this chapter number 21. What are these terms in our daily life? It affects a lot in our society also. So we have to be very careful while understanding and while treating with these terms in our real life also. हम अपने रियल लाइफ में भी ये सारे टर्म्स को हम कह सकते हैं कि अनचाहे, चाहकर भी नहीं लेकिन अनचाहे भी हम उसे यूज़ करते हैं किसी और के ऊपर. यू विल गेट slowly. So to understand these things and to start the explanation of this chapter, let's listen to the story of one poor woman. Let's start that story. Prejudice, discrimination and inequality. Children, today I would like to tell you the story of Lakshmi. Lakshmi is from a very poor family. She works hard to manage a family of 4. In her daily life, she is subjected to different forms of discrimination. She works at the construction site as a daily wage laborer. Every day, on her way to the construction site, she stops at the temple. The temple priest does not allow her to enter the temple. With the tears in her eyes, she prays from outside and moves on. Her next stop is in front of the huge window of a garment shop. She stands and stares at the colorful saris displayed in the window. The shopkeeper, seeing her tattered clothes, shoos her away. Finally, she reaches the construction site and begins work. She is used to the contractor yelling at her for coming in late. After a tiring day, Lakshmi runs to the contractor to collect her wages. She counts the money in her hand to realize that she has been paid less than the men folk for the same work. She fears complaining as she might lose her job. Children, you must have realized that Lakshmi is being discriminated for being from a low caste, for being poor and for being a woman. Many people in our society have to deal with such different forms of discrimination in their everyday life. These kind of prejudices are harmful to the society. The basic cause for this is ignorance and insensitivity. We as citizens of secular India must condemn prejudices
and discrimination and treat everyone equally with respect. So yes, students, did you enjoy that? We can say short story, or we can say poor life of, what is the name of that woman? Yes, Lakshmi. So students, there are many Lakshmis living in our societies right now also. What did she face? She faced prejudice, discrimination and inequality from the society, okay, from our people. तो उन्होंने क्या फेस किया? उन्होंने फेस किया, हम कह सकते पक्षपात, भेदभाव और हम कह सकते असमानता. ओके, सो शी हैज़ टू work very hard at the construction site. She is not allowed to enter into the temple. Then she is also not paying, or we can say the wages as equal to other male persons also, or male laborers. So there are many different things, okay, that she has to face because she is a poor woman also. So students, today in this chapter we will discuss about all these things, okay, which are not good for our society, not good for our, we can say, humanity also. So these three terms, prejudice, discrimination and inequality, should be, we can say, treated as, we can say, bad habit, or we can say bad things. We should not practice, or we should not apply this thing or these terms to anyone, okay, either they are of the lower caste or upper caste, okay. All these things comes in this one only, okay, in the course of the our textbook only, textbook explanation. So what are these we can say prejudice and discrimination and inequality in our society, how they exist? Okay, so they are, we can say, in the form of customs. Remember the friends, they are in the form of customs. So what are these customs and what are these things? Okay, so to make it more and more clear, let's see what are these customs and our religions, or we can say different traditions. Okay, so students, to understand these things we have to go through this kind of few terms. First of all is, what is custom? कस्टम मीन्स प्रथा, जिसे हम प्रथा कहते हैं, जो पुरानी होती है, ओके, हमारे एंसेस्टर्स मतलब हमारे जो पूर्वज है वो फॉलो करते हैं. ट्रेडिशन दैट पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड कस्टम. ओके, दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स, ओके, टू हैव अ मैरिज, और वी कैन से टू do like different customs. Then yes, types of customs. Dear friends, there are basically two types of customs, good customs and bad customs. गुड मतलब अच्छे, जो हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छे हैं और हमारे डेवलपमेंट के लिए भी अच्छे हैं. एंड बैड कस्टम्स मीन्स बैड फॉर आवर ह्यूमैनिटी ऑल्सो, बैड फॉर आवर सोसाइटी एंड बैड फॉर आवर कंट्री ऑल्सो. Good customs like widow remarriage, not to follow well system, not to follow dowry system and girl education. These are the good customs. Widow remarriage मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि जिसके पति या पत्नी को, अभी विडो है तो हम कह सकते हैं पति जिसका मर गया है वो वापस फिर से मैरिज कर सकते हैं. नॉट टू फॉलो वेल सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ना कि पर्दा प्रथा जिसे कहते हैं, घूंघट ओढ़ना जिसे कहते हैं, जो भी है, ओके, डिफरेंट रिलीजियस में डिफरेंट होती है, तो दैट सिस्टम ऑल्सो. नॉट टू फॉलो डाउरी सिस्टम. डाउरी सिस्टम मीन्स वेन एवर अ गर्ल is going to be married, okay, she means her parents have to pay something to the, okay, we can say the parents of the male candidate, okay, तो उन्हें कुछ ना कुछ देना पड़ता है, that is called dowry system. This is very one of the, we can say, biggest and weakest or we can say the system, okay, of our Indian tradition. Then लास्ट वन इज गर्ल एजुकेशन. हाँ, हमें गर्ल को और मोर हम कह सकते हैं कि एजुकेशन के स्कोप अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए. दिस आर ऑल गुड कस्टम्स जो हमें फॉलो भी करने चाहिए और उसे बढ़ाना चाहिए. बट बैड कस्टम्स दैट आर ऑल्सो इन आवर सोसाइटी, वो भी होते हैं जो प्रैक्टिस भी होते हैं और कह सकते हैं कि उससे बहुत इफेक्ट भी होती है. फर्स्ट वन इज चाइल्ड मैरिज. ओके, छोटे बच्चे होते हैं उनकी मैरिज हो जाती है. दैट इज़ नॉट गुड फॉर एनी वन. Then will system, this is called the system of, we can say, पर्दा प्रथा जिसे कहते थे, ओके, घूंघट उड़ना, whatever the things.
Then sati pratha. Sati pratha means once if the husband is passed away, okay, that girl, or we can say the widower, has to be, we can say, sit on that, we can say, जिसे हम कह सकते हैं ना कि उसे जिंदा जलाया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड सती प्रथा। ओके, उन्हें लकड़े के ढेर के ऊपर बैठना होता था, और जो हम कह सकते थे ना, जिसकी हम चिता जलाते हैं, ओके, आफ्टर द डेथ ऑफ एनी पर्सन, ओके, तो इन्हें भी उनके साथ जिंदा जलाया जाता था, दैट इज़ कॉल्ड सती प्रथा। देन कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम इज़ टोटली, वी कैन से, डिवाइडेड इन फ्यू काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। यस, हम कह सकते हैं क्लियरली कि वो डिस्क्रिमिनेशन से ही एक हम सिस्टम हमारी बन गई है, भेदभाव से। द अपर कास्ट, द लोअर कास्ट, द मिडल क्लास, ओके, these are the things. Then untouchability, okay, this is also one of the biggest problem in our societies right now also, कि किसी को छूना भी नहीं है, ओके, उससे कोई बात भी नहीं करनी है, उससे पानी भी हम नहीं, तो हम कह सकते हैं जैसे कि हमने लक्ष्मी की स्टोरी देखी थी, that woman is not allowed to enter into the temple also. So that is the best example of untouchability, okay, of the lower caste people. So these are the bad customs. We will see now one by one all these customs. Yes, these are all the bad customs right now that we have to, we can say, stop, we have to hold back, we have to, okay, end all these systems: dowry system, caste system, whale system, child marriage, untouchability, girl child slaughter and sati pratha. हाँ dear students, girl child slaughter means जैसे कोई छोटी बच्ची, जैसे हम कहते हैं ना बेबी गर्ल, अगर बेबी गर्ल जन्म लेती है तो उसे मार दिया जाता है, ओके। हाँ, जिसे हम कहते हैं ना, गुजराती में भी एक था जो आप कह सकते थे, जो प्रथा दूध पीती करना। सो दूध पीती मतलब जो गर्ल है उसको एक बड़े से वेसल में जिसके अंदर मिल्क, ओके, पोर किया जाता है, उसके अंदर उसे डुबा के मार देना। एंड स्लॉटर का मतलब दूसरा भी होता है कि गला भी हम कह सकते हैं घोट देना, ओके, टू किल दैट गर्ल चाइल्ड, ओके। सो दिस काइंड ऑफ हॉरिबल, और वी कैन से very 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 cruel systems that prevailing in our society right now also. So we have to stop all these bad habits, or we can say our customs. Then yes, what is that ideological changes and social reforms in modern India. हाँ, अब धीरे धीरे हमारा इंडिया जो मॉडर्न हो रहा है, तो उस मॉडर्न इंडिया में हमें ये सारे सिस्टम्स बंद करनी पड़ेगी. There are many social reformers, okay. These social reformers are also mentioned in our चैप्टर ऑल्सो. हमारे चैप्टर के अंदर भी वो सोशल रिफॉर्मर्स हैं, उनके बारे में बात की गई है कि उन्होंने अलग अलग जो सोशल इविल्स थे उन्हें हटाने के लिए बहुत अपने, हम कह सकते हैं कि अपनी लाइफ पूरी सेक्रीफाइस कर दी थी, ओके. नेक्स्ट वन इज dowry system. As I told you that the parents of the girl have to give a kind of rupees, gold, or different we can say ornaments and other things to the parents of the male candidate, okay. So this is called dowry system, जिसे हम हिंदी में या गुजराती में कह सकते हैं दहेज प्रथा, okay. That is very very bad and it is also right now existing in our society also, जिसे हमें ख़त्म करना चाहिए. Then caste system. Let's take the example of Hindu caste system, in which we have started, or we have discriminate this caste from lower to upper: Shudra, Vaishya, Kshatriya and Brahmin. So we put all these, okay, category of this caste from lower to upper one. Yes, these are the caste one also. So at bottom of, you can say, the caste system, untouchables are there, okay, जिन्हें कोई हम कह सकते कि वैल्यू नहीं दी जाती है, okay, untouchables. Then Sudras, they are also not having that much kind of, we can say, equality, or we can say the importance. Then Vaishyas, or we can say the Vaishnavas. Then Kshatriyas, and at last Brahmins. So they are the top, we can say, the upper caste. They are so called upper caste for the, we can say, this is the example of Hindu caste system. Then yes, whale system, it is also another, we can say, the bad custom, okay, of our society also. Whale system, in a different religion, these are also having different name, okay. The child marriage, one of the also very bad custom, okay, that is also right now existing in our society, जो अभी भी चल रही है प्रथा, okay. So we have to stop this child marriage also. Then
Next one is untouchability. You can see that a girl is also giving a kind of, you can say, water, a glass of water, by not touching that woman also. Okay, so untouchability. So we have to end this kind of caste discrimination. Okay, all are human. Okay, all are human, and we have to, we can say, develop that humanity, okay, among us. Then girl girl child slaughter. Okay, save the girl child. Yes, save the girl child. Right now you are the students, or we can say the children of 21st century, so you will not heard about this kind of things, but before few years, or we can say few more years, okay, this kind of things are, we can say, existing in our society. Okay, but right now it's not now that much in the power, or we can say in existence. And thank to all the social reformers who try to, okay, or we can say demolishes these kinds of social evils. Yes, दिस इज कॉल्ड सती प्रथा, जिसे मैंने आपको कहा था कि चिता पे उन्हें जिंदा जलाया जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट एग्जिस्टिंग राइट नाउ. दिस आर द, okay, bad customs, okay, of our society also. Then what are the, we can say, remedies, or how we can, okay, remove all these bad customs. Okay, so these are the few points: by educating people. Yes, by inspiring all the people means all the caste, religion, okay, all the people. By making a good educated society. Yes, education is the, we can say, the main, we can say, the solution for all these kinds of problems. By raising economic standard of people. By raising the economic standard of people. And by social awareness. उन्हें हम कह सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस से उन्हें मालूम करना पड़ता है कि यस, विच आर दी बैड कस्टम्स दैट आर ऑल्सो इन आवर सोसाइटी. ओके, नाउ वी आर, एज आई टोल्ड यू, वी आर वेरी वेरी लकी दैट वी आर दी, वी कैन से, citizens of 21st century, in which many things are already removed, or we can say demolished by the social reformers. Okay, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी है ही नहीं. Okay, बहुत सारे जो कस्टम्स थे, बट फिर भी जो हमारे जो 3 वर्ड्स जो हमने भी टाइटल में भी पढ़े थे, प्रेजुडिस, discrimination and inequality, they are also having an effect on our society. Let's start. Yes, students, so let's start the unit. So you all get the idea, or we can say reason behind to remove all these kind of terms which are, we can say, the very very bad, okay, for our society and for our humanity. So let's start the chapter number 21, prejudice, discrimination and inequality. Before to start it, let's have the, we can say, view of the words, new words, hard words, or words to know. Yes, let me make it little bit bigger. Yes, the first one is prejudice, preconceived opinion that is not based on reason or actual experience. Okay, किसी की रीज़न, कोई फेयर रीज़न या किसी के एक्सपीरियंस के विदाउट ही आप किसी के बारे में कोई ओपिनियन बना लेते हैं. ओके, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस. दिस आई कॉल्ड पक्षपात. ओके, जिसे मैंने आपको कहा था पक्षपात होना. नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन, द अनजस्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, स्पेशली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, एज और जेंडर. किसी भी, हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों को, स्पेशली उनके रेस के ऊपर, मतलब कलर के ऊपर, उनके कास्ट के ऊपर और उनके जेंडर के ऊपर, आइदर मेल और फीमेल, ओके, उसके ऊपर से हम उनसे करते हैं भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन. ओके, अनजस्ट ट्रीटमेंट, भेदभाव करना. इनइक्वालिटी, डिफरेंस इन साइज, डिग्री, सर्कमस्टांसिस एक्सेट्रा, लेक ऑफ इक्वालिटी. ओके, लेक ऑफ इक्वालिटी मतलब कि समानता ना होना. ओके, डिफरेंट इन साइज, डिग्री एंड सर्कमस्टांसेस, उनके साइज में, डिग्री में, और हम कह सकते हैं कि उनके कलर में, उनके जेंडर में. ओके, दिस आर कॉल्ड इनइक्वालिटी. ओके, देयर आर मेनी थिंग्स. देन स्टीरियोटाइप, देयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट वर्ड, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप, a widely held but fixed and oversimplified image or idea of a particular type of person or thing. जिसे मैं हिंदी में कहूँगा कि जिसे हम गुजराती में भी कहते हैं कि स्टीरियोटाइप मीन्स जुनवानी.
जो पहले से चल रहा है, ओके, जुनवानी जिसे हम कहते हैं ना, कि जो पुराने हम कह सकते हैं कस्टम रिवाज, रीति रिवाज, दैट इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप, ओके। देन कर्ब्ड, रिस्ट्रेन और टू होल्ड बैक, मतलब आगे नहीं बढ़ने देना, उसे पीछे रखना, होल्ड बैक रखना, ओके, रिस्ट्रेन करना। देन डिकंडीशनिंग, डिकंडीशनिंग, अनलर्न अ सर्टेन सेट ऑफ एडॉप्टेड बिहेवियर, ओके, जो हम कहते हैं ना कि उसे हम नहीं पढ़ना चाहते, हम कह सकते हैं उसे नहीं समझना चाहते, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनिंग। देन प्रीकंसीव्ड, टू फॉर्म अ कंसेप्शन और ओपिनियन फ्रॉम बिफोर हैंड, जैसे कि हम कह सकते हैं किसी के बारे में पहले से ही आप उन्हें जाने बिना, समझे बिना, ओके, उनके साथ बातें किए बिना, कोई भी प्रकार हम कह सकते हैं किसी भी टाइप का एक्सपीरियंस किए बिना आप अपना ओपिनियन बना लेते हैं, ओके, कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीकंसीव्ड। डिसहार्मनी, द नेक्स्ट वर्ड इज डिसहार्मनी, अ लैक ऑफ एग्रीमेंट और हार्मनी, ओके, जो हम कह सकते हैं कि समानता या एकता नहीं होना, दैट इज कॉल्ड डिसहार्मनी। रिटार्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज रिटार्ड, डिलेड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, जस्ट डिलेड मतलब थोड़े देर से, थोड़े देर बाद में होना, ओके, थोड़े टाइम के बाद में होना, दैट इज कॉल्ड डिलेड डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। कॉन्फ्लिक्ट, a serious disagreement or argument, a serious disagreement or argument, that is called conflict, okay, जिसे हम कहते हैं ना कि असमंजस होना, बहस होना, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। एग्रीमेंट मतलब जो हम कह सकते हैं ना कि आप हाँ में हाँ करते, दैट इज़ नॉट लाइक दैट, ओके, अगर आप किसी बात में आपको कोई अपोज है, हम कह सकते हैं कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको हम कह सकते हैं कि डिसएग्रीमेंट करते हैं, ओके, और आप आर्गुमेंट भी करते हैं, ओके, बहस जिसे कहते हैं, बहस होना। स्टम्बलिंग ब्लॉक, नेक्स्ट वर्ड इज स्टम्बलिंग ब्लॉक, अ सर्कमस्टांसेस दैट कॉजेज डिफिकल्टी और हेजिटेशन, ओके, हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ को प्रोग्रेस होने में वो रोकना, ओके, जैसे कि किसी भी कंट्री का अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो उसके लिए बीच में ये सारे जो प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी, दे आर ऑल स्टम्बलिंग ब्लॉक्स फॉर द नेशन, फॉर द सोसाइटी, अंडरस्टूड। देन द नेक्स्ट वर्ड इज एट्रोसिटी, एन एक्सट्रीमली क्रूअल और वायलेंट एक्ट। स्टूडेंट्स, आई थिंक यू आर राइट नाउ स्मॉल टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड एट्रोसिटी, बट जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके अगर आप उनके ऊपर आपको कह सकते हैं कि कोई भी दूसरे प्रकार से अगर हम कह सकते हैं कि फिजिकली या मेंटली अगर उन्हें हैरेसमेंट करते हैं या उन्हें मारते हैं या उन्हें हम कह सकते हैं कि परेशान करते हैं, तो उनको ये हम कह सकते हैं कि एक हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने एक ये रूल दिया गया है एट्रोसिटी, वो आपके ऊपर ये एट्रोसिटी का हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि चार्ज लगा सकते हैं, ओके, फॉर द स्पेशली लोअर कास्ट पीपल, ओके। देन कंडीशनिंग, टू मोल्ड और अडेप्ट बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द प्रिविलिंग कल्चर, जो पहले से ही चला आ रहा है उसको हम कह सकते हैं कि जो सारे जो उनके रूल्स रेगुलेशन है उसे अडेप्ट कर लेना, ओके, अडेप्ट कर लेना मतलब हम कह सकते हैं स्वीकार कर लेना, दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग, ओके, टू मोल्ड, थोड़ा सा बदलाव के साथ। इनऑक्यूलेशन, यस, इनऑक्यूलेशन, देन वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट अ डिसीज, मतलब कोई भी अगर रोग हो रहा है और उसको रोकने के लिए जो गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स या लोकल पीपल जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस करते हैं, ओके, जो हम कहते हैं ना कि रस्सी देना, इंजेक्शन देना, दैट इज कॉल्ड इनऑक्यूलेशन। हेरार्किकल, रिमेंबर द नेक्स्ट वर्ड इज हेरार्किकल, दिस इज द वर्ड फ्रॉम हेरार्की, ओके, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ हेरार्की विच मीन्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ रैंक हायर टू लोअर। हायरार्की मतलब होता है कि अपर हायर, मतलब जो हम कह सकते हैं ना कि हायर रैंक से लोअर रैंक तक, ओके, बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत हायर कास्ट देन लोअर कास्ट, ओके, दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल, ओके। द नेक्स्ट वन इज अनटचेबल्स, द पीपल हु वेर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ हायरार्की एंड ट्रीटेड एज अनवर्दी। अनवर्दी का मतलब होता है कि इनकी कोई कीमत नहीं होनी, ओके, कोई इंपॉर्टेंस नहीं होना, ओके, द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ हायरार्की। हायरार्की मतलब जो मैंने आपको कहा था कि जो हम कास्ट सिस्टम में जो हम उसका हम कह सकते हैं ट्रायंगल बनाते हैं जिसे हम पिरामिड कहते हैं, ओके, जो हमने पहले भी देखा अभी, ओके, इन दिस वन दिस पीपल्स आर एट द बॉटम, वी हैव सीन दैट एट द बॉटम ऑफ दैट हायरार्की ट्रायंगल और पिरामिड। फंडामेंटल राइट्स, students, this word is also we have completed in the chapter number 20 also. The essential freedom granted by
the Constitution of India for the overall growth of the a community or we can say a person. ओके किसी एक पर्सन की और पूरी कम्युनिटी की पूरी ग्रोथ करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलग अलग फ्रीडम देते हैं. ओके दिस फ्रीडम्स और वी कैन से दिस रूल्स आर फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं. ओके फंडामेंटल राइट्स, रिमेंबर दिस वर्ड. ओके इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन लास्ट वर्ड इज एनश्राइन. सो एनश्राइन मीन्स टू बी प्रिजर्व्ड और टू बी प्रोटेक्टेड, मतलब उसको हमें संभाल के रखना चाहिए और जो हम कह सकते हैं जिसे संभाल सके, प्रोटेक्ट कर सके. ओके प्रिजर्व, ओके एंड प्रोटेक्ट ऑल्सो, दैट इज मीनिंग ऑफ दैट इज वर्ड इज एनश्राइन. सो स्टूडेंट्स, these are the words with their meanings, and also we have completed the meaning of these three terms: prejudice, discrimination and inequality. So after this let's start the chapter. Okay, I think you have understood all these things. Yes, the big idea about this unit is prejudice, causes and effects. उसके क्या क्या causes है और उसके क्या क्या effects हैं. Stereotypes, which are the stereotypes right now, okay, existing in our society. Then discrimination and inequality, and at last striving for equality. Then striving for equality, कि हमें इक्वालिटी के लिए क्या क्या करना है और हम उसके लिए हमें सच में बहुत ज़रूरत है इक्वालिटी की. हमारे सोसाइटी में जो बैलेंस होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके टू मेक आवर कंट्री एंड आवर सोसाइटी ऑल्सो वी कैन से यूनाइटेड. Yes, now there is a photograph over here, students. Okay, so that great person is no one else but Nelson Mandela. Yes, I will read about him. Yes, Nelson Mandela was a Nobel Peace Prize winning anti-apartheid activist and a political leader from South Africa. ये साउथ अफ्रीका के हम कह सकते हैं कि पहले के प्रेसिडेंट रह चुके हैं. ओके ही वॉज वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ही वॉज एंटी एपार्थाइड एक्टिविस्ट. ओके एंटी एपार्थाइड मीन्स जस्ट अ काइंड ऑफ एपार्थाइड. ओके जो साउथ अफ्रीकन की गवर्नमेंट ने, हम कह सकते हैं वहाँ के लोगों ने एक ऐसा एक्ट बनाया था स्पेशली फॉर दी अगेंस्ट ऑफ द ब्लैक पीपल. ओके जो ब्लैक कलर के जो हम कह सकते थे ना जी पीपल थे, उनके खिलाफ उन्होंने एक एक्ट बनाया था जिसके अंदर उन्हें कोई रूल्स नहीं दिया गया था. ओके देयर इज़ नॉट सच ऑल्सो इक्वालिटी ऑल्सो. ओके एज वी कैन से कंपेयर टू दी वाइट पीपल. तो जो वाइट पीपल थे उन्होंने ब्लैक पीपल के लिए ऐसे रूल्स बनाए थे, एंड दिस आर दी रूल्स ओके कॉल्ड एपार्थाइड. सो ही वॉज एंटी एपार्थाइड ओके पर्सन एंड ही गॉट दी नोबेल पीस प्राइज. ओके जो हम कह सकते हैं ना कि शांति का सबसे बड़ा जो प्राइज़ है ओके अवार्ड है वो उन्हें मिला है. ओके ही वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. वो साउथ अफ्रीका के चुने गए ओके डेमोक्रेटिकली ओके पहले प्रेसिडेंट थे जो चुने गए थे. ही स्पेंट 27 years इन प्रिजन ड्यू टू हिज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड. एपार्थाइड मीन्स अ सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर. जो लोगों के कलर थे उनके ऊपर उनको बहुत सारे अलग अलग जो कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए गए थे, एंड दिस आर कॉल्ड एपार्थाइड. उनके अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला ने हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हम कह सकते हैं मूवमेंट स्टार्ट किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही स्पेंड 27 years इन प्रिजन. 27 years, ऑलमोस्ट 30 years ओके उन्होंने जेल में बिताए थे. ही वर्क टायरलेसली अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी एंड डेमोलिस्ड the system after becoming the president of South Africa in 1994. उन्होंने बहुत मेहनत की और फिर हम कह सकते हैं कि भी डेमोक्रेटिकली जब वो सिलेक्टेड और इलेक्टेड हुए प्रेसिडेंट, तब उन्होंने जाके ये जो सिस्टम थी हम जो कह सकते हैं कि कौन सी यस एपार्थाइड ओके उन्हें उसे डेमोलिश कर दिया और पूरी तरह से उसे निकाल दिया ओके फ्रॉम अफ्रीका ओनली साउथ अफ्रीका. सो ही वॉज द वेरी वी कैन से ग्रेट पर्सनैलिटी एंड वी कैन से द सोशल रिफॉर्मर okay for South Africa also. We have our own also social reformers in India, we will see. Okay, so what is the main topics in the unit? Yes, our sociological issues, few issues that we have to go through one by one. First one is prejudice. Okay, yes, the meaning and everything that we will go through in that one by one. Then stereotype.
and discrimination, and at last with discrimination inequality also there. So students, let's start the unit. Yes, let's start it with the first topic or term, prejudice. Biased, preconceived, for unfavorable opinion form about something or someone without examination of facts is called prejudice. प्रेजुडिस का मतलब होता है कि बायस्ड, पहले से ही आप उसके खिलाफ हम कह सकते हैं कि हेट्रेट या कुछ हम कह सकते हैं कि दुश्मनावट की भावना ले लेते हैं, प्री कंसीव्ड, ओके, पहले से ही अपना ओपिनियन बना लेते हैं, ओके ओके, ये ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, लाइक दैट, विदाउट एग्जामिन और विदाउट वी कैन से एक्सपीरियंस एनी काइंड ऑफ द फैक्ट्स, ओके, एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स, ओके, किसी भी प्रकार के फैक्ट्स मतलब तथ्यों को जाने बिना ही आप अपने हिसाब से ओपिनियन बना लेते हैं किसी भी पीपल के बारे में, कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में या ग्रुप के बारे में, ओके, दिस इज कॉल्ड प्रेजुडिस. उसका हिंदी मीनिंग होता है पक्षपात. सच एन ओपिनियन इज नॉट बेस्ड ऑन रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस. यस, नॉट रीजन और एक्चुअल एक्सपीरियंस. Prejudice creates disharmony in society and hampers the progress and growth of our country. Prejudice से हमारे कंट्री में हम कह सकते हैं डिसहार्मनी होती है, पैदा होती है, और हमारे वो कंट्री के प्रोग्रेस को वो हैम्पर करती है, मतलब पीछे धकेलती है, ओके, और पीछे धकेलती है. As citizens of land of diversity, one should be aware of the causes of prejudice. हम जो सिटीजन है इस लैंड ऑफ डाइवर्सिटी के, अलग अलग जो हम कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी जो हमारे में है पहले से हमने देख भी ली थी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये प्रेजुडिस की कॉजेस कौन कौन से हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. कॉजेस ऑफ प्रेजुडिस. प्रेजुडिस कैन बी ड्यू टू वेरियस कॉजेस. द बेसिक कॉजेस ऑफ प्रेजुडिस आर इग्नोरेंस. यस, द फर्स्ट वर्ड इज इग्नोरेंस, मतलब उन्हें हम अनदेखा करते हैं, इग्नोरेंस, ओके. When people form an opinion before having the evidence for its truth. सच को जाने बिना ही आप अपने ओपिनियन बना लेते हैं किसी भी, हम कह सकते हैं कि इंसान के बारे में या फिर किसी ग्रुप के बारे में या फिर रिलीजन के बारे में, बट दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस, ओके. एंड लेक ऑफ सेंसिटिविटी. इग्नोरेंस एंड लेक ऑफ सेंसिटिविटी, आपका किसी भी लोग हो कह सकते हैं किसी भी धर्म के बारे में उसकी आपकी सेंसिटिविटी नहीं होना, मतलब आपके हम कह सकते हैं ना कि सेंसिटिविटी होनी, वो नहीं होना, लेक ऑफ सेंसिटिविटी. प्रेजुडिस कैन ऑल्सो बी द रिजल्ट ऑफ सोशल बायस. सोशल बायस का हमने पहले भी एग्जाम्पल देखा, द एग्जाम्पल ऑफ लक्ष्मी ऑल्सो, ओके. सो दे आर केप्ट, ओके, वेरी बॉटम ऑफ द सोसाइटी, ओके, ऑफ द कास्ट ऑफ द सोसाइटी, और कैन से उन्हें बहुत ही अलग ही रखा जाता है, ओके. दैट इज कॉल्ड सोशल बायसेस. इट कैन नॉट समथिंग यूनिवर्सल. इट इज़ नॉट समथिंग यूनिवर्सल, समथिंग वी हैव इनहेरिटेड और आर बॉर्न विथ. ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यूनिवर्सल हो, जो हर जगह है. समथिंग वी हैव इनहेरिटेड, जो हमें हम कह सकते हैं कि हम जो कहते हैं ना कि हमें वारिस में मिलती है, जो हमारा जो हक है जो उसमें मिलती है, इनहेरिटेड, जिसे हम वारसा कहते हैं, ओके, जायदाद जिसे कहते हैं, इनहेरिटेड, और आर बॉर्न विथ, और जिसको हम लेके पैदा भी होते हैं. नो, द प्रेजुडिस इज kind of a thing or term that is created by our society, okay, by the people, by different religions people also. Sometimes even family members can create prejudice and discriminate between daughters and sons. Yes, the best example is over here. कभी कभी हमारे फैमिली मेम्बर ही प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन का हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल सोसाइटी में, घर में ही क्रिएट करते हैं बिटवीन द डॉटर्स एंड सन. यस, जो हम कह सकते हैं कि कैसे, तो जो सन होता है उसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंस दिया जाता है, ओके, उसे ज़्यादा हम मान सम्मान देने कह सकते हैं कि उसे दिया जाता है, जबकि डॉटर है उसे सारा घर का काम करना होता है और फिर भी उसको ही सब कुछ सहन करना पड़ता है, ओके. दिस आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स. देन रिलीजियस डाइवर्सिटी. विच वन? रिलीजियस डाइवर्सिटी कैन गिव राइज टू प्रेजुडिस. समटाइम्स differences within the same religion can give rise to prejudice. Yes, religious diversity में हम कह सकते हैं कि वो एक खुद प्रेजुडिस को हम कह सकते हैं कि जो रिलीजियस डाइवर्सिटी है वो प्रेजुडिस को हम कह सकते हैं कि राइज कर सकते हैं, मतलब कि उसे और आगे ले जा सकते हैं अगर वो गलत तरीके से समझा जाए तो. Sometimes difference within the same religion can give rise to prejudice, as we have already taken the example of Hindu caste system.
ओके. सो दिस 4 सिस्टम्स ओके दैट वी हैव ऑलरेडी मेड ओके वो प्रेजुडिस की तरफ ही ले गए हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट वन. Differences between the majority and minority communities may result in prejudice. Yes, the same example that we have already seen that yes कि जो मेजोरिटी है और माइनॉरिटी है उसके बीच में जो हम कह सकते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बार बार ओके दैट रिजल्ट इनटू द प्रेजुडिस. मेजोरिटी का मतलब कि ज़्यादा होना ओके और माइनॉरिटी का मतलब होता है कम होना ओके. उनके जो हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन के हिसाब से हैं वो मेजोरिटी में मतलब ज़्यादा होते हैं और माइनॉरिटी में मतलब कम होते हैं. दिस 2 वर्ड्स ओके मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी. सोशल डिस्टेंस द गैप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, bans on entry to religious places and other types of discrimination also lead to prejudice. Yes, as we already have seen the example of Lakshmi, that poor woman. ओके उसके लिए सोसाइटी ने सोशल डिस्टेंस पहले से क्रिएट कर दिया है. ओके सो बैन्स ऑन द एंट्री ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, देन ऑल्सो कैन नॉट टच और कैन नॉट सिट विथ एनी अदर और वी कैन से एनी अदर वी कैन से सोसाइटी और द पीपल. ओके तो ये सारे जो सोशल डिस्टेंस है दैट ऑल्सो लीड टू प्रेजुडिस. दीज आर द कजेस. यस देन आफ्टर द कजेस जो हम कह सकते हैं कि जब हो गया है तो उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स. यस इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस. अब वो क्या करते हैं तो प्रेजुडिस कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर आवर सोसाइटी. ये आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं होता है लेकिन इससे ही प्रेजुडिस के बाद ही डिस्क्रिमिनेशन और डिस्क्रिमिनेशन के बाद ही इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी से हम कह सकते हैं कि डिसहार्मनी और डिसहार्मनी से हम कह सकते हैं कि हमारी जो यूनिटी है वो टूट जाती है. ओके वी विल बिकम एनिमी ऑफ ईच अदर. ओके ये भी बहुत बड़ा हम कह सकते हैं टर्म है, बहुत बड़ी प्रोसेस है अगर हम इसे समझे नहीं तो. सो प्रेजुडिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट अमोंग कम्युनिटीज विच constitutes a major threat to peace both within a nation and among nations. Yes, प्रेजुडिस से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कम्युनिटीज़ के बीच में और हम कम्युनिटी की भी बात करें तो कंट्रीज़ के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट होता है जिससे हमारी जो यूनिटी है उसको एक हम कह सकते हैं बहुत बड़ा झटका लगता है. ओके जो हमारी पीस है उसको भी हम शांति से नहीं रहते. फिर हमारे नेशन के अंदर और हमारे नेशन के साथ दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब हमने समझाया कि ओके डिसआर्ग्यूमेंट और वी कैन से डिसएग्रीमेंट और वी कैन से सीरियस आर्ग्यूमेंट्स. ओके बहस होना ओके दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट. Prejudice can strengthen mistrust, suspicion and bitterness already prevailing in the society. Prejudice से जो मिसट्रस्ट है एक रिलीजन या एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ऊपर उससे उसे ताकत मिलती है. प्रेजुडिस ओके दैट इज़ द पक्षपात वी कैन से. सस्पिशियन एंड बिटरनेस जिसे हम कहते हैं ना कड़वास ओके वो बाहर आती है जो ऑलरेडी है सोसाइटी में. हाँ एक लोग तो हम कह सकते हैं एक कास्ट को दूसरे कास्ट के ऊपर हम कह सकते हैं कोई बिटरनेस तो रहती है लेकिन प्रेजुडिस से वो बहुत और ज़्यादा आगे बढ़ती है. तो दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल. देन प्रेजुडिस कैन लीड टू रेशियल एरोगेंस. यस प्रेजुडिस कैन लीड टू रेशियल एरोगेंस. रेशियल एरोगेंस मतलब हम कह सकते हैं कि हम अद्धता जिसे हम कहते हैं ना रेशियल एरोगेंस. दिस वाइडन्स द गैप among different groups and races in the world. रेस का मतलब हम कह सकते हैं कि जो दूसरे कास्ट के लोग जो होते हैं रेस ओके रेशियल हम रेस से हम कह सकते हैं कि कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो दीज आर ऑल्सो डिफरेंट कलर्स ऑफ द पीपल ऑल्सो. सो दिस इज कॉल्ड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो. सो प्रेजुडिस से रेशियल एरोगेंस भी क्रिएट होता है. उससे जो दुनिया में जितने भी रेशियल डिफरेंट रेसेस के ग्रुप हैं उसके बीच में हम कह सकते हैं कि गैप मतलब हम कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होती है. प्रेजुडिस लीड्स टू डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी इन सोसाइटी थ्रू स्ट्राइफ एंड वॉर. यस प्रेजुडिस लीड्स टू डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी इन सोसाइटी थ्रू स्ट्राइफ एंड वॉर. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ओके अगर हमें रिसेंटली कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना वॉर. ओके दिस आर दी we can say conflict and war because of not only the land because of also the prejudice. okay हमारा एक हम कह सकते हैं कि एक कास्ट का या रिलीजन का दूसरे कास्ट या रिलीजन के ऊपर से हम कह सकते हैं कि डिफरेंट प्रेजुडिसेस और डिस्क्रिमिनेशंस के जो हम कह सकते हैं कि व्यू पॉइंट्स है उसके हिसाब से. तो दैट इज लीड टू डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी इन द सोसाइटी.
यस उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो यूनिटी है वो टूट जाती है. ओके, रिमेंबर दिस वर्ड्स. As a stumbling block for unity and integration, prejudice can retard the progress of a nation. एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारी यूनिटी और इंटीग्रेशन के बीच में. और प्रिजुडिस कैन रिटार्ड द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन. रिटार्ड का मतलब होता है कि स्टे होल्ड बैक रखना. ओके, रिस्ट्रेन रखना. ओके, वो हमारी कंट्री के प्रोग्रेस को हम कह सकते हैं कि होल्ड बैक रखता है, पीछे रखता है. उसे हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेस करने देता नहीं है. ओके, दिस आर दी वी कैन से इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस एंड वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस. सो यस स्टूडेंट्स, I think we will stop over here, and in the next session we will continue with the steps necessary to reduce the prejudice, then stereotype, then we can also continue the discrimination and inequality, and after that religion discrimination, and at last we will have also the striving for equality, and for that we have some fundamental rights, and we will also go through these all rights, fundamental rights. So up to here we will stop now, and in the next session we will continue, okay, from onwards only from where we left. So here we have completed the causes of prejudice and effects of prejudice. कॉजेज में हम कह सकते हैं कि जो इग्नोरेंस और लैक ऑफ सेंसिटिविटी है और सोशल बायस है वो उसके मेन कॉजेज है. ओके, और वो आज नहीं होते या कल नहीं होते, ये परसों से चली आती है. ओके, ऑफ इग्नोरेंस ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, और वी कैन से लैक ऑफ सेंसिटिविटी, जिसे हम कह सकते हैं मानवता भी नहीं होना, उसे हम भी कह सकते हैं यस लैक ऑफ सेंसिटिविटी. एंड देन सोशल बायसिस, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के ऊपर अपना ही खुद का हम कह सकते हैं कि भेदभाव है. ओके, पक्षपात होना, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस. और ये सब होने से उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं सोसाइटी में? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी कम्युनिटीज़ एंड कंट्रीज़. देन हमारी जो मिसट्रस्ट है, जो हम कहते हैं सस्पिशन है, फिर हमारी जो बिटरनेस है, जो कड़वास है, उसे और ताकत मिलती है और स्ट्रेंथ बनता है, मतलब ताकत मिलती है. देन प्रेजुडिस कैन लीड टू सोशल एरोगेंस, वो जो हम कह सकते हैं ना कि रेशियल एरोगेंस को उसे और हम आगे ले जा सकते हैं. ओके, मतलब कि जो हम कह सकते हैं कि वाइट्स एंड ब्लैक्स के हम जो एग्जांपल दे रहे थे उसके ऊपर हम और आगे हम कह सकते हैं कि उसको एरोगेंस, उसको और हम कह सकते हैं कि बढ़ाया जाता है. देन प्रेजुडिस कैन ऑल्सो लीड्स टू डिसयूनिटी एंड डिसहार्मनी इन द सोसाइटी. ओके, जो डिफरेंट हम कह सकते हैं रेस, रिलीजन और उनके जो ग्रुप्स है उनके बारे में, कम्युनिटीज़ के बीच में जो डिस्टर्बेंस होता है उसके वजह से डिसयूनिटी और डिसहार्मनी होती है. अल्टीमेटली हमारी सोसाइटी की यूनिटी टूटती है और उससे हमारी कंट्री की भी यूनिटी टूटती है. एट लास्ट प्रेजुडिस से ही हम कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है वो रोका जाता है. हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्रेक लग जाती है. ओके, रिटार्ड, ओके, रिस्ट्रेन हो जाता है. ओके, स्टे बैक हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारी जो कंट्री के जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, वो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में रह जाते हैं. वो गवर्नमेंट और जो हम कह सकते हैं कि जो पीपल है, सोसाइटी है, वो दूसरा कुछ आगे का काम नहीं कर सकते. बस उन्हें यही जो इंटरनल प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो जाते हैं उसे ही सॉल्व करने में लगे रहना पड़ता है. सो दिस आर दी वी कैन से कॉजेज ऑफ प्रेजुडिस एंड इफेक्ट्स ऑफ प्रेजुडिस. इन द नेक्स्ट सेशन स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट दी वी कैन से रेमेडीज और वी कैन से दी the effect to remove this kind of prejudices, and then we will learn about the discrimination and inequality, and at last we will also learn about fundamental rights. So till then, thank you.